Hello all my dear students, good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes. All my dear students, as you know, at present your chapter number 10 is running and it's about to complete. Earlier we have completed nearly 80% of syllabus, and today we will discuss remaining part of your chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. All my dear students, this chapter will also be included in your midterm examination, and let you know about your midterm examination. In your midterm examination, there will be half portion of your NCERT. It means that after removal or after deletion of 30% of your syllabus, we will include chapter number 2, microorganisms, friend or foe, in your midterm examination. Then we will discuss materials, metal or non-metal, this is chapter number 4. Then आपको बताया गया cell structure and function, reproduction in organism and reaching the age of adolescence. It means that in your midterm examination there will be 5 chapters. Those are chapter number 2, chapter number 5, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10. Chapter number 2 is microorganisms, friend or foe, very important chapter. Chapter number 4, materials, metal or non-metals, this is also very important, you will get in your higher classes also. Then reproduction in animals, जो कि आपका chapter number 9 है, this is also very important and part of your next class. इसके पहले chapter number 8 है आपका cell structure और function, वो भी important chapter है. chapter आपको 9 में मिलेगा as it is. Then reaching the age of adolescence, that is at present running, and today we are going to discuss. So in previous topic we have discussed about the various endocrine as well as exocrine glands. So today we are going to discuss about the remaining portion, in which we have to discuss about the reproductive health, as well as we will also discuss about the determination of sex. It means that the inborn baby or newly born baby will be what, boy or girl, how it is decided. So first of all, without wasting the time, let us start sex determination. It means that infant or newly born child will be boy or girl in the case of human being. So dear students, as we know that human, यहाँ से आप ये past of years लगा सकते हैं, humans have 46 chromosomes. 46 chromosomes, ये बेटा 46 तो होते हैं, but you can write 23 pairs present in the nucleus of each cell, present in the nucleus of each cell. यानी क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने हैं? Chromosomes, there are 23 pairs, or you can write 46 chromosomes. ठीक है बेटा, पेयर का मतलब तो समझ ही रहे ना आप, 46. These are of two type. First, autosomes. Second, sex chromosome. Sex chromosome. Here autosomes are pair number 1 to 22 and forms the body. ये बेटा बॉडी को बनाने का काम करते हैं. इसका मतलब इनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं. इट मीन्स दैट नो रोल इन determining the sex, no role in determining the determination of sex भी लिख सकते हैं आप. Sex chromosome, this is the last pair of chromosome, last pair of chromosome. इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? 23rd. Okay, and determines the sex. And determines the sex of individual.
सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। कैसे? देयर आर टू कैटेगरीज। इफ इट्स मेल it has last pair as a XY, and if it's female she has last pair X and X. It means that in the case of male they have a X and a Y chromosome. देखो होता क्या है, आपके पास हमने कितने बताया था 22, these were autosomes, एक पेयर ही हो गई तो 23 हो गए। ठीक है, अगर यहाँ से देखे जाए तो ये टोटल कितने थे 44, ये 45 और ये 46। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पेयर इन द केस ऑफ मेल। दिस इज व्हाट हेटेरोमॉर्फिक है ना, ये एक X एक Y। यहाँ पे ये क्या है बेटा, एक X दूसरा भी X है। अब ये तो मेल और फीमेल की बात हुई, लेकिन डिटर्मिनेशन सेक्स का कैसे होगा, अब वो यहाँ से देखते हैं। लेट्स कंसीडर फ्रॉम हियर फादर और ये है मदर, यानी ये पेरेंट्स हैं बेटा। ठीक है, फादर के पास क्या कॉम्बिनेशन है X एंड Y, मदर के पास बेटा क्या कॉम्बिनेशन है X एंड X। ये कहाँ होंगे, ओवा में, और ये कहाँ होंगे, स्पर्म में भाई। क्यों? क्योंकि गैमीट्स है ना। पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर ये गैमीट्स बना लेंगे तो एक बनेगा X, एक बनेगा Y। यहाँ पे क्या बनेगा X पहला, दूसरा वाला भी X। ये सभी क्या हैं, गैमेट्स हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, X फ्यूज हो जाए किससे, X से, तो हो जाएगा X एंड X। दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला X इस वाले X से कर ले, X एंड X वंस अगेन। तीसरी पॉसिबिलिटी दिस Y विद दिस X, X एंड Y। फोर्थ पॉसिबिलिटी दिस Y विद दिस X, X एंड Y। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या मिल रहे हैं, X X, ये दोनों क्या मिल रहे हैं आपको, X Y। इट मीन्स दैट 50% मेल एंड 50% फीमेल। ठीक है, यानी नेचर ने जो व्यवस्था की है बेटा, उसके अकॉर्डिंग 50% मेल चाइल्ड और 50% फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होती हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ से देखें, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, sex of individual is decided by Y chromosome present in male gamete sperm। ठीक है, यानी गांव देहात में जो बेटा ये भ्रांति है कि अगर बच्चा जो हो रहा है, यानी बेटा अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए फीमेल को जिम्मेदार ठहराया जाता नहीं। अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो उसके लिए फीमेल का कोई रोल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, खुद मेल है, क्योंकि उसका वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज ही नहीं कर रहा है, तो फीमेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं, जितना भी रोल है सब मेल का है। सो पीपल शुड नॉट ब्लेम द वुमेन्स for not delivering the male child. It's total responsibility of male. And one more important thing, that in nature everything is balanced, so no need to be panic. Okay, so this was all about the determination of sex. ओके बेटा, यहाँ से अगली कैटेगरी देखते हैं, रोल ऑफ हार्मोन। रोल ऑफ हार्मोन इन द लाइफ साइकिल ऑफ insect and frog. In the life cycle of insect and frog. So first of all let's discuss insects. So in insects, ड्यू टू इंसेक्ट हार्मोन, नाम ही उसका वही है, ड्यू टू इंसेक्ट हार्मोन लार्वा
got converted into adult by drastic changes known as metamorphosis, यानी conversion of larva into an adult is known as metamorphosis. That required hormone, those are known as insect hormone. In the case of frog, thyroxine hormone is essential for growth of larva, that is tadpole, into an adult, and for which iodine is essential. That is taken from water, and if iodine is absent, then larva of frog will never convert into adult. ठीक है, एंड उधर हमने लिखा कि नहीं लिखा, वाटर, एंड in absence of iodine, larva will never convert into an adult. Okay, so hormones are also very essential for the insects, not only for the human being. It's also for insects, it's also for frog, that is amphibian. It can survive in water as well as it can also survive on land. That's why this is known as amphibian. अगर बेटा उसको आयोडीन नहीं मिला तो थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा, और थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा तो लार्वा जो मेढक का है वो कभी एडल्ट बनेगा ही नहीं, मेढक की कहानी ही खत्म हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द various hormones, those are responsible for conversion of larva into an adult. So this was all about your previous topic. अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक देखेंगे बेटा, that is reproductive health. ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? reproductive health. That is very very important, and you will get a particular chapter in your class 12th. पूरा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है बेटा क्लास 12th में, तो इस वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना यहाँ पे जरूरी है. सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल as well as emotional, or we can also write behavioral. State of mental, physical as well as emotional or behavioral well-being of an organisms in which reproductive organs are developed properly and functional. ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? दिस इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव वेलबींग. ये रिप्रोडक्टिव वेलबींग यहाँ से हम क्यों रख रहे हैं बेटा? होता क्या है कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, मेंटल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और इनके साथ साथ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए और वो फंक्शनिंग होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी किसी इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता या वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, सो दैट मे नॉट बी कंसीडर एज ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन आर दोज in which reproductive organs are properly developed and they are functional, as well as they have control on their emotion. You often seen that at the age of adolescence, or we can say that during puberty, in our body there are various changes, and due to that changes people often, or boys and girls often, are not able to control their emotion. ठीक है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड दे जस्ट डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। सो दैट इज अ नॉट गुड साइन एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ए कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सनालिटी। ठीक है, तो अगर आप डेवलप तो हुए लेकिन साथ साथ आप मस्तिष्क पे, ठीक है, अपनी इंद्रियों पे आपको कंट्रोल है, then you will be considered as a reproductively healthy person. So now we are going to discuss that how we can maintain a reproductive health. So बेटा अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे हम reproductive health को maintain कर सकते हैं, how we can maintain reproductive health, how we can maintain reproductive health. ठीक है, ये चैप्टर इसीलिए रखा गया है कि आपको आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बताया जाए और उन चेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी डाइट आपको लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आप एक हेल्दी पर्सनालिटी बन सके फ्यूचर में। सो हाउ वी कैन मेंटेन, द फर्स्ट स्टेप इज दैट बाय टेकिंग दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बैलेंस्ड डाइट, बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। ठीक है बेटा, आपको अगर हेल्दी रहना है तो बैलेंस डाइट लेनी है। वी शुड यूज द डाइट दैट contains proper amount of carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, etc. So we should use that diet that contains a proper or adequate amount of carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins, and by means of that we will able to cope with the situation of the development of the body. So we should use यहाँ से आप पढ़ा लेंगे बेटा, we should use the diet that contains proper amount of carbohydrate for energy. Carbohydrate provide you energy, कहाँ मिलता है आपको? शुगर में मिलेगा, you can get from potato, you can get from rice. Protein is also known as body building food because it helps in the growth and repair of the body and also build the muscles. Fat is also essential for our body because it also provide the energy, but more than carbohydrate. Carbohydrate and fat both provide the energy, but fat here providing more energy in comparison to carbohydrate. But it is quite obvious that we should not use excessive amount of fat because fat digestion is so complicated and it may cause obesity or certain other problems such as blockage. ठीक है, vitamins protect us from various kind of diseases and these are required in very lesser amount. In the case of minerals are also very essential for development of bone, formation of blood. ठीक है, तो मिनरल्स, विटामिन्स, फैट ये एक ऐसी डोज है आपके लिए जो एक प्रॉपर अमाउंट में आपके लिए आवश्यक है। कब? जब आप एडोलसेंस में हो या ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो रही हो। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो पहला तो बेटा आप संतुलित खाना खाएंगे। सेकंड,
personal hygiene, that is very important aspect. So पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे आप मेंटेन करोगे? वी शुड बाथ डेली, ठीक है. हेयर एंड नेल्स शुड बी कट प्रॉपरली टाइम टू टाइम, एज वेल एज you will also keep your surrounding as well as yourself, your house is very neat and clean, and by means of doing that you will able to protect themselves or yourself from various kind of bacteria, viruses, or those cause various disease. It means that pathogens, यानी personal hygiene का use करके we can survive from various pathogens. We can survive from various pathogens by maintaining the hygienic condition. By maintaining the hygienic condition. By maintaining the hygienic condition. कैसे करोगे बेटा? मैंने आपको बताया, ये तो कॉमन सी चीज़ है. कम से कम 2 बार आप ब्रश करोगे सुबह शाम, नहाओगे, आप अपने हेयर और नेल को प्रॉपरली काटोगे, घर की साफ़ सफाई, आस पड़ोस की साफ़ सफाई रखोगे, पोल्यूशन नहीं फैलाओगे, ठीक है. कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करोगे जिससे पोल्यूशन होता हो. सो बाय मीन्स ऑफ दैट यू कैन मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन. थर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, से नो टू ड्रग्स. से नो टू ड्रग्स. ओके बेटा, से नो टू ड्रग्स. इसका मतलब क्या हुआ? वी शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ड्रग्स एट एडोलसेंस और एट प्यूबर्टी और एट एनी स्टेज ऑफ आवर लाइफ. पीपल ऑफन यूज, आपने देखा होगा बेटा, जब आप एडोलसेंस में होते हैं, प्यूबर्टी में होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स से या कहीं इधर उधर से या आपके जो आइडियल्स हैं, आइकन्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं, ठीक है, उनके माध्यम से आप क्या करते हैं, वायरियस तरह के एडिक्ट हो जाते हैं. उनमें आप अलग अलग तरह का प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, अल्कोहल, ऐसी चीज़ें, ड्रग्स, कोकीन, स्मैक, जो भी है बेटा, वो यूज़ करने लगते हैं. तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का चेंजेस ला सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. सो वी शुड नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ ड्रग्स. वी शुड टेक ओनली बैलेंस्ड डाइट. And also we will advise to our friends, our neighbors, our parents, ठीक है, हम उन सभी को बताएंगे we should not use any kind of drugs. That is very very harmful for us. So we should not use the drugs. We should maintain the personal hygiene as well as we should eat the balanced diet. And by doing that we can maintain our reproductive health. ठीक है बेटा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एक पॉइंट आप और बढ़ा लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यानी बेटा आप खेलेंगे कूदेंगे भी, ये नहीं कि केवल आप पढ़ाई करिए. एक आपका परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, एंड इन विच वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज़ द रूटीन ऑफ आवर डेली लाइफ. एंड वी शुड ऐड स्पोर्ट एक्टिविटी. आप क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, जंपिंग है, जंपिंग मतलब छत से नहीं कूदना है आपको, ठीक है, रस्सी कूदना है, जैसे होता है ना लोग करते हैं. So we can do all those things to maintain the what? Reproductive health. Regular exercise is also very important aspect. होता क्या है कि लोग खाना खा के सो जाते हैं. That is very harmful. आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, ड्रग्स बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, पर्सनल हाइजीन करना है और साथ साथ बैलेंस डाइट लेना है. So this was all about for today of the main topics. Now we will discuss about the various keywords. Those are given in your NCERT. ओके बेटा, तो यहाँ सब देखेंगे कीवर्ड्स. मोस्टली मैं कीवर्ड्स आपको मेन टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. द फर्स्ट वन इज एडम्स एप्पल. दिस इज व्हाट? ग्रोइंग, वाइस, बॉक्स,
and protrude in the neck region in males. Why this is not protrude in the case of females? Because in the case of females their voice box or larynx is smaller than the male. So in the case of male there is Adam's apple, this one, ये जो आपको दिख रहा है ना, this one is known as Adam's apple. और ये अगर निकल आया ना तो इसका मतलब आप अब एडल्ट हो चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड वन इज हियर, दैट इज ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन एडोलसेंस. व्हाट इज एडोलसेंस? दिस इज द चेंजेस in our body that lead to reproductive maturity, that leads to reproductive maturity. ठीक है बेटा, ऐसे चेंजेस जो आपको रिप्रोडक्टिवली मैच्योर करते हो 11 to 19 ईयर्स के बीच में ये स्टेज आपको मिलती है. नेक्स्ट adrenaline. This is what hormone secreted by adrenal gland during stress. We also call this adrenaline hormone as a emergency hormone, and also known as emergency hormone. This was also given. next बेटा है आपका बैलेंस डाइट. अब ये मैंने आपको बताया है डाइट that contains proper amount of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, etc. The diet that contains proper amount of carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Next, endocrine gland we have already discussed. Ductless gland and secrete hormone into blood directly. ठीक है बेटा. ये भी थे आपका 6 दिया गया है प्यूबर्टी. ठीक है. दीज आर द onset of changes during adolescence. कहाँ से होता है बेटा? हमने आपको बताया था गर्ल्स में जल्दी होता है, बॉयज़ में देर से होता है. 13 to 18 ईयर्स के बीच में. ठीक है. 19 भी हो सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्यूबर्टी. नेक्स्ट, व्हाट इज एस्ट्रोजन? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. हार्मोन secreted by ovary, responsible for secondary sexual characters. Secondary sexual character भी कीवर्ड में दिया गया. What are the secondary sexual characters? These are the characteristics those just develop under the influence of sex hormone in male and female separately and that lead to reproductive maturity, such as in the case of females menstrual cycle start हो जाती है, जो ब्रेस्ट हैं वो बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. डिपोजिशन फैट का हो जाता है लोअर थाई रीजन में, हिप रीजन में. ठीक है. आवाज़ जो है उसमें श्रिल्ड हो जाती है. ये तो सब बात हुई कहाँ? फीमेल्स में. इन द केस ऑफ मेल्स there is a development of testis and secretion or production of sperm, deepening of voice, widening of shoulders,
अब एज वेल एज अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टिच, तो मूछें, दाढ़ियाँ आना, आवाज़ भारी होना, शोल्डर्स का डेवलपमेंट होना, वो सभी क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से एस्ट्रोजन का भी दिया गया है, तो एस्ट्रोजन में भी आपको यहाँ दिया गया क्या, हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसी के बाद टेस्टोस्टेरोन भी दिया गया आपके कीवर्ड्स में, तो व्हाट आर टेस्टोस्टेरोन, दोज आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। यानी फीमेल में जो काम एस्ट्रोजन का होता है वही काम टेस्टोस्टेरोन का होता है कहाँ, मेल में, ठीक है। देयर वाज आल्सो अ कीवर्ड दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैंने आज ही आपको बताई, स्टेट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलॉन्ग विथ इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल एंड मेंटल कंट्रोल, तो वो एक रीज़न हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसा मैंने आपको बताया दैट वाज आल्सो गिवन इन योर कीवर्ड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेन टॉपिक कीवर्ड्स एंड यू विल डू एक्सरसाइज योरसेल्फ। दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, दैट क्या होमवर्क है, डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब वो वाली एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10। नहीं आप बेटा कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने तो बताया था कि हमको एक्सरसाइज करनी है, तो हमने आज 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रेस लगाई, मैंने आज क्रिकेट खेला, मैंने आज बैडमिंटन खेला। नो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सरसाइज। ये प्रॉपर एक्सरसाइज आपको चैप्टर नंबर 10 की करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देर विल नॉट बी एनी डाउट, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट और आफ्टर watching all 4 parts, if there is any doubt in this chapter, you can leave in your comment box, as well as you can just send me message personally. I will surely answer all those. So this was all about for today. Like always, keep smiling. Have a nice day.